سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش ہوئی ہے، جس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں درخت گرنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ بعض جگہوں پر بل بورڈز بھی گر گئے ہیں، جبکہ بجلی کا نظام بھی کئی مقامات پر درہم برہم ہو گیا ہے۔ کراچی میں بلدیہ مواج کوٹ میں عمارت کی چھت گرنے سے 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 11 لاشوں اور 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق سے۔ کاشف، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس کراچی میں بارش سے متعلق؟ بالکل، کراچی میں بارش سے متعلق یہ تفصیلات ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف حادثات کے اندر اب تک 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلدیہ مواج کوٹ کا علاقہ ہے، یہاں پہلے ایک گری اور پھر گھر کا جو چھت ہے وہ گری ہے، جس کے بعد 11 افراد کی لاشیں اب تک نکال لی گئی ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر ریسکیو آپریشن یہاں مکمل کر لیا جائے۔ اب بھی اس عمارت کے ملبے کے نیچے جو ہے وہ لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ 11 افراد کی جن کی لاشیں نکالی گئی ہیں انہیں کراچی کے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ اسی طرح کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ لانڈی مجید کالونی میں جو ہے وہ دیوار گرنے سے ایک خاتون اور ایک مرد جاں بحق ہوا ہے۔ ملی ندی کے قریب جو ہے وہ ایک شخص آسمانی بجلی گرنے سے جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے، جبکہ کرنگی 3.5 نمبر میں بھی ایک خاتون جو ہے وہ چھت گرنے سے جاں بحق ہوئی ہے۔ مختلف واقعات کے اندر 7 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ جو بلدیہ کا یہ انسیڈنٹ ہے، یہاں ایس ایس پی کیماڑی بھی پہنچ چکے ہیں، جبکہ ڈی سی کیماڑی بھی پہنچ چکے ہیں اور پورے ایریا کو کارڈن کر لیا گیا ہے۔ اس وقت ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، جبکہ عمارت کے نیچے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ایک لسٹ بھی مرتب کی جا رہی ہے کہ آیا کتنے لوگ اس میں دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے سرچنگ کا عمل بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ ہیوی مشینری طلب کر لی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف مشتاق۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں آندھی کی رفتار 97 جبکہ شارع فیصل پر 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ مختلف مقامات پر درخت اور سائن بورڈز گرنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ شہر میں کے الیکٹرک کے 2 سے زائد فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تمام بلدیاتی اداروں اور ڈی ایم سیز کو فوری طور پر فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کراچی کی فضاؤں میں طوفانی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی انٹری۔ صدر، کلفٹن، ڈیفنس، گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ ناز آباد، سرجانی ٹاؤن، لانڈھی، ملیر اور دیگر علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ مصروف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ عید کی خریداری کے لیے گھر سے نکلنے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مواج گوٹ میں چھت گرنے سے 11 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مختلف مقامات پر درخت اور سائن بورڈ گرنے کی اطلاعات بھی ہیں، جبکہ بہت سے علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ماڑی پور میں ہوا کی رفتار 97، شارع فیصل پر 90 جبکہ ایئرپورٹ کے قریب 64 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے متعلقہ عملے کو مشینری کے ساتھ متحرک کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صورتحال کے پیش نظر بلدیاتی اداروں اور ڈی ایم سیز کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کراچی سمیت پورے صوبے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے اور متعلقہ محکموں کے تمام عملے کی عید کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ کراچی کے اہم شاہراہوں اور مارکیٹوں سے پانی کی نکاسی فوری یقینی بنائی جائے۔ کراچی میں بارش کے باعث کہیں درخت گرے، کہیں سڑکوں پر پانی کے سبب ٹریفک متاثر ہوا۔ 200 سے زائد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ولید احمد۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ کراچی میں تیز بارش ہوئی، ہوائیں چلی، بجلی کڑکی، بادل گرجے اور اس کے سبب شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی گاڑیاں خراب ہو گئیں، لوگ اپنی گاڑیوں کو کھینچتے ہوئے اپنی منزلوں کی جانب رواں دواں ہوئے۔ بارش اس قدر شدید تھی کہ شاپنگ کرنے کے لیے جو لوگ گھروں سے نکلے تھے وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہوئے۔ کراچی کے متعدد علاقوں میں بارش ہوئی، جس کے بعد شہر کی سڑکوں پر پانی بھی کھڑا ہوا۔ میں اس وقت موجود ہوں ایمپریس مارکیٹ پر، جہاں کی جو سڑک ہے اس کے مناظر آپ کو کیمرہ مین عدنان زیدی دکھا رہے ہیں۔ اس سڑک پر بھی پانی موجود ہے۔ شارع فیصل کے کچھ مقامات پر پانی موجود ہے اور اسی طرح نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن اور جو شہر کے متعدد علاقے ہیں وہاں پر سڑکوں پر پانی موجود ہے۔ بارش کے بعد یہ شکایات بھی سامنے آئی کہ کئی علاقوں میں بجلی چلی گئی۔ تقریباً شہر کے 10% حصے میں فیڈرز ٹرپ ہوئے۔ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 2100 فیڈرز میں سے 200 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہوئے ہیں، یعنی شہر کا جو 10% حصہ ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بارش کے سبب کچھ جگہوں پر درخت بھی گرے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی کافی متاثر رہی۔ رات کے اس پہر بھی سڑکوں پر پانی موجود ہے اور ٹریفک کی روانی کچھ متاثر نظر آتی ہے۔ پاکستان نے آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روک دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تار نے کہا ہے کہ آپریشن آج رات سے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی رات تک رکا رہے گا۔
ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ को ईद उल फितर के एहतराम और बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर रोका गया है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की तफसीलात बताते हुए वज़ीर इत्तलाआत ने बताया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अब तक 707 अफगान तालिबान मारे गए, 938 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने इस दौरान अफगान तालिबान रजीम की 255 चौकियों को तबाह और 44 पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह की। अफगानिस्तान में 81 दहशतगर्द और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। 16 मार्च की रात पाक फोर्सेज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने काबुल में अफगान रजीम के असलहा, ज़ख़ीरे और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा था, और ये कार्रवाई भी अफगान तालिबान के उन 53 हमलों के जवाब में की गई जो उन्होंने पाकिस्तान में हमारी चेक पोस्टों पर किए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि शुरू उन्होंने किया है, हमने जवाब दिया है। हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करते हैं तो ये अपनी मलेशिया लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने इनकी 81 लोकेशंस पर स्ट्राइक की हैं और ये सारे हमले दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हैं। ये वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही थी। वहाँ पे काबुल में देयर इज ए मिलिट्री कैंप वेयर देयर इज ए एमुनिशन स्टोरेज साइट एंड देयर इज ए ड्रोन स्टोरेज साइट। ड्रोन स्टोरेज साइट तो देयर वाज इक्विपमेंट, जो टेक्निकल इक्विपमेंट, वहाँ पे ये ड्रोन्स की, एमुनिशन की स्टोरेज साइट्स। हमने इनको टारगेट किया, वो उसको पिन पॉइंट उसी को हिट किया गया। उसके बाद आपने वहाँ देखा, दुनिया ने देखा कि वहाँ पे जो सा है एक अमल होता है, अगर कहीं पे एमुनिशन हो और वो उससे स्ट्राइक करे तो वो उसके बाद सेकेंडरी डेटोनेशन हुई, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस वाज करेक्ट एंड वी आर हिट एमुनिशन स्टोरेज। तो एमुनिशन फटा, जब वो एमुनिशन फटा तो पूरे काबुल के अंदर वो लोगों ने देखा वो आग का शोले भी बड़े और काफ़ी देर चलते रहे वो वहाँ पे, बिकॉज दैट वाज द एमुनिशन। वहाँ पे उन्होंने पुराना मिसाइल, ये जो रशियन ज़माने के जो स्कड मिसाइल हैं वो भी उन्होंने स्टोर किए हुए हैं वहाँ पे। और एमुनिशन पड़ा था, ड्रोन स्टोरेज थी, इक्विपमेंट स्टोरेज था, वो सारा उड़ा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जब तालिबान रजीम कहती है कि दहशतगर्दी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलविस है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये अपनी मलेशिया को वहाँ ले आते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को इंटरव्यू के दौरान बताया कि पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। Because this context, immediate context भी मैं आपको क्लियर हूँ। हमने पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के मुतसल्ला इलाकों में जो उसके अलॉन्ग थे वहाँ पे टेररिस्ट हाइड आउट्स को, एब्सोल्युटली टेररिस्ट हाइड आउट्स को हिट किया। मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, वी हिट दैट जी। और वहाँ पे हमने, ये खुद कहते हैं ना कि ये तो TTP है, पाकिस्तानी तहरीक तालिबान पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी है ना, तो हमने तो अफगानियों को हिट नहीं किया, हमने दहशतगर्दों को हिट किया। दे देन स्ट्रक, इन्होंने 53 मकामात पे पाकिस्तान के ऊपर हमारी पोस्टों पे हमला किया। किन्होंने? अफगान तालिबान ने, जिसको ये अपनी तालिबान रजीम की जो रेगुलर मिलिशिया या फौज कहते हैं। तो दे स्टार्टेड इट बाय अटैकिंग पाकिस्तान अलोंग द बॉर्डर ऑन द रेगुलर पोस्ट। ये उसका जवाब जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के और ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक पर जवाबी हमले जारी हैं। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले आज भी जारी रहे। इसराइल ने फिजाई हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब, ईरानी कमांड सेनेटर्स, मिसाइल तनसीबात और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा किया। सूबा बलूचिस्तान में 7 अफराद शहीद और 56 जख्मी हो गए। अमरीकी सेनेट हुक्काम ने दावा किया कि अबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया ने अमरीकी इसराइली हमलों में ईरान की साहिली जुनूबी पारस फील्ड में कुदरती गैस की तनसीबात पर हमलों की तस्दीक कर दी। ईरान के बुशहर जौहरी प्लांट के अहाते में गिरने वाले प्रोजेक्टाइल से प्लांट महफूज रहा। हमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ। ईरान ने भी अमरीकी इसराइली अहदाफ पर ऑपरेशन वादा सादिक की 62वीं लहर से हमले किए। इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम मिसाइल हमले रोकने में नाकाम रहा। तल अबीब में जोरदार धमाके सुने गए। मुतादिद इलाकों में आग भड़क उठी। इसराइली शहर बेत शमिश पर मिसाइल हमले में कई इमारतें निशाना बनी। इसराइली शहर होलोन में गाड़ियों और सड़कों को नुकसान पहुंचा।
बिन गोरिन एयरपोर्ट पर खड़े 3 जहाजों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फौजी तंसीबात पर भी मिसाइल हमले किए गए। इसराइल ने 2 अफराद की हलाकत और 200 अफराद जख्मी होने की तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के हमले जारी हैं। दुबई एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। कई इलाकों में जंगी जहाजों की परवाजें भी हुईं। अमारती हुक्काम के मुताबिक फिजाई दफाई निजाम ने मिसाइल को फजा में तबाह कर दिया। गुज़िश्ता रात से दुबई में मुतअद्दिद मिसाइल रोके गए। मिसाइल हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलियाई फौजी अड्डे के करीब भी मिसाइल गिरा। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला किया गया। शुमाल मशरक़ी शहर करकुक में भी एक फौजी अड्डे पर हमला किया गया। सऊदी अरब में सफारती इलाके की जानिब आने वाले 2 ड्रोन मार गिराए गए। सऊदी वजारत दिफा ने कहा कि हालिया घंटों में मुतादिद ड्रोन्स और एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया। कतर और कुवैत ने भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा किया। ईरान ने साउथ पार्स फील्ड पर इसराइली हमले के बाद खत्ते की उन तमाम तेल तंसीबात को अपना हदफ करार दे दिया जो अमरीकी कंपनियों की मिल्कियत हैं या उनके ज़ेर इंतज़ाम चलाई जा रही हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी नेवी कमांडर ने खलीजी मुल्कों की तेल और गैस तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अगले चंद घंटों में सऊदी अरब, यूएई और कतर की तेल और गैस तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब की सामरफ रिफाइनरी और अलजुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का भी ऐलान किया है। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की गैस फील्ड को भी निशाना बनाया जाएगा। कतर की रास अल फनान रिफाइनरी और मुसईद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का भी ऐलान किया गया है। साउथ पार्स फील्ड पर हमले के बाद से गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई है। इराकी हुक्काम के मुताबिक ईरान से इराक के लिए गैस एक्सपोर्ट बंद हो गई है। साउथ पार्स फील्ड से ईरानी गैस की पैदावार 25,000 मिलियन मुकअब फुट से ज़ायद है। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पार्स फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। कतर एनर्जी ने कहा है कि कतर में रास अल फनान इंडस्ट्रियल सिटी पर बुध की शाम मिसाइल से हमला किया गया है। हमले के बाद आग लग गई जिसे बुझाने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। कतर एनर्जी के मुताबिक हमले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा है कि जून में ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका को ऐसी कोई शहादत नहीं मिली कि ईरान यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियतों में इजाफा कर रहा हो। अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी को ब्रीफिंग में तुलसी गबार्ड ने कहा कि पिछले जून में ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बड़ी हद तक तबाह कर दिया गया। जून के बाद ईरान से ऐसी कोई अलामत नहीं मिली कि तेहरान एक बार फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को बढ़ा रहा हो। तुलसी गबार्ड ने कहा कि अगर ईरानी क़यादत ईरान जंग से बच गई तो उन्हें अपना मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम असर नौ तामीर करने में साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है। तेहरान में शहीद अली लारिजानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा भी अदा की गई। तेहरान में ईरानी बहरिया के सेलर्स की नमाज जनाजा भी अदा की गई। ईरानी सेलर्स श्रीलंका के नज़दीक ईरानी जंगी जहाज़ पर अमेरिका के हमले में शहीद हुए थे। अली लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी गुज़श्ता रोज़ तेहरान में इसराइली फ़ौज के हमले में शहीद हो गए थे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। अमेरिका के साबिक वाइट हाउस तवानाई मुशीर बॉब मैकनेली ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की तवील बंदिश का कोई मौसर पॉलिसी हल मौजूद नहीं है। सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस महदूद हैं जिनमें से ज़्यादातर या तो अलामती हैं या गैर मौसर, जबकि कुछ फैसले नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। उनके मुताबिक फौजी निगरानी, तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर का इस्तेमाल या गैस टैक्स में कमी जैसे इकदाम महज आर्जी और सानवी नौइयत के हैं। ये भी कहा कि असल हल सिर्फ यही है कि आबनाए हुर्मुज़ में तेल की तरसील को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। ताहम अगर अमेरिका फौरी तौर पर जंग ख़त्म करने का ऐलान भी कर दे तो भी इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोल देगा और सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। इनके मुताबिक ईरान अगर मुसलसल ये सलाहियत ज़ाहिर करता रहे कि वो आबनाए हुर्मुज़ में जब चाहे जहाज़ों को निशाना बना सकता है तो वहाँ से आलमी बहरी आमदोरफ्त को मुतासर करने के लिए भी यही काफ़ी होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर खित्ते की हालिया सूरत हाल में बेहतरी की जो सिफारती कोशिशें कर रहे हैं वो मंजर आम पर नहीं है। अभी तक ब्रेक थ्रू तो नहीं मिला, मगर पाकिस्तान हमसाया मुल्क होने का हक अदा कर रहा है। अफगानिस्तान से बार बार तवील बातचीत का कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि अफगान अबूरी हुकूमत बदनीयत है। इमरान खान की आंख बेहतर है, उनके बच्चे खुद पाकिस्तान नहीं आना चाहते, इसलिए कागजी कार्रवाई में कभी एक बहाना कभी दूसरा इख्तियार किया जा रहा है। तलाल चौधरी की नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौरीन सलीम जंजुआ से खुसूसी गुफ्तगू देखिए।
सऊदीया से हमारे तल्लुकात हमेशा से बहुत ही अच्छे हैं, मगर इस सिचुएशन में दोनों जो मुल्कों की क़यादत है उनका बड़ा अहम रोल है। बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे नहीं आई, लेकिन शहबाज साहब ने और पाकिस्तान की क़यादत ने, शहबाज साहब ने CDF से मिल के बहुत रोल प्ले किया है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेक थ्रू तो नहीं हो सका, लेकिन अभी भी पिछली दफ़ा भी जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो उस वक़्त भी बहुत बड़ी जंग या बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए काफ़ी रोल प्ले किया था। इस दफ़ा भी रोल पहले भी प्ले किया है, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने आप कह सकते हैं कि अपना हक अदा करने की कोशिश की है। अगर ये जंग लंबी चली तो पाकिस्तान क्या अपनी बैलेंस्ड जो फॉरेन पॉलिसी है वो मेंटेन रख सकेगा? हर लीडर के साथ कोई ना कोई चीज़ जुड़ जाती है। शहबाज शरीफ और CDF की पार्टनरशिप के साथ डिप्लोमेसी जुड़ गई है। कल्ब से खुसूसन सऊदीया से तो एक डिफेंस एग्रीमेंट हो जाना, फिर चाइना भी खुश हो, मगरब और अमेरिका भी खुश हो, एक बालिग क़यादत जो है वो इस तरह की डिप्लोमेसी करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग जारी है, क्या मुज़ाकरात के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं? आइडियल सिचुएशन तो ये है कि बातचीत से मामला हल होना चाहिए, और ज़िम्मेदार जो रियासतें हैं वो बातचीत से ही मामला हल करते हैं। बातचीत हुई, बातचीत बहुत लंबी बातचीत हुई है, लेकिन उसका नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि अफ़गान इंटरिम हुकूमत बदनीयत है। बानी PTI जिस अस्पताल में और जिन डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो उसमें उसकी इजाज़त देने में हुकूमत को क्या कबाहत है? ज़रा समझे, खान साहब छुट्टियों पे नहीं गए हुए, वो जेल में है, वहाँ हर चीज़ TV चीज़ें सहूलत मौजूद है। तो पहले ही वो तो इस तरह लगती है कि जेल booking.com से बुक करवाई हुई है। बेहतरीन इलाज हुआ है, आपकी नज़र उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाप कितनी देर से जेल में है, आप तशरीफ नहीं ला सकते। कभी कहते हैं मेरे कार्ड गुम गए हैं, कभी कहते हैं वीज़े नहीं। कमाल करते हैं, पूरी दुनिया को वीज़े मिल रहे हैं, हर बंदे के कार्ड रिन्यू हो रहे हैं, सिर्फ आपके नहीं हो रहे। अब एक उसमें से ये निकालते हैं कि भी बड़ी ज़्यादती हो रही, ताकि लोगों में ये फीलिंग आए कि बड़ा कोई ज़्यादती जुल्म हो रहा, हालांकि बच्चे खुद नहीं आना चाहते। लाहौर में ईरानी काउंसिल जनरल मेहरान मुहतफर का कहना है कि ईरान में ईद नौरोज़, ईद उल फितर और जंग की कामयाबी का जश्न एक साथ मनाएंगे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान में लोगों के रोज़मर्रा के काम मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, दुकानों पर तमाम सामान वाफिर मिकदार में मौजूद है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। रोज़ वाले दिन ईरान का नए साल का आगाज़ होता है। ईरान में नौरोज़ और ईद कैसे मनाई जाएगी, इस हवाले से जो तफसीलात हैं हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी कौंसल जनरल लाहौर मेहरान मुवाहिदफर, उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। ईद नौरोज़ व ईद फितर हम दर ईरान में से रोज़ाई दिगे است. ईद नौरोज़ और ईद फितर भी ईरान में बाकी अयाम की तरह हैं, बाकी दिनों की तरह हैं, और वहाँ जिस तरह जंग के बावजूद लोगों का रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के उमूर हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ईद नौरोज़ को भी मनाएंगे, ईद उल फितर को भी मनाएंगे, और अपनी कामयाबी को भी हम जश्न मनाएंगे। महंगाई में इजाफे के बाद से अवाम की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो जो जंग के असरात हैं वो आवाम की ज़िंदगी और बच्चों की सेहत और बाकी उमूर पर उसको कम से कम रखा जाए, बिल्कुल ख़त्म किया जाए। ईरान की हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, और अगर आप बाज़ार में घूमें तो तमाम दुकानों पर देखेंगी कि खाने पीने की या ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। ज़ायरीन के लिए अभी भी आपने रास्ते रखे हैं कि वो आ सकते हैं, या आपने मखसूस वक्त के लिए जो ज़ायरीन हैं उन पर पाबंदी लगा दी है? जंग से पहले रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ हम ज़ायरीन की खिदमत करते थे। वो ज़ायरीन जो हरम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और हरम मुतहर हज़रत बीबी मासूमा की ज़ियारत के लिए जाना चाहते थे, उनमें से अक्सर जो है वो फ़्लाइट के ज़रिए मशहद और तेहरान जाते थे। जंगी हालात की वजह से इस वक्त ईरान की फ़्लाइट दस्तयाब नहीं हैं। रूस और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं।
آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں جس طرح سے امریکی فوجی اڈے بنے ہوئے ہیں، اگر وہ ہٹا دیں تو ان کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے؟ چائنا اور رشیا کے ساتھ تعلقات اور جو تعاون یا مدد کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کا جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عام حالات میں بھی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ قائم و دائم تھے. ہمسایوں کے حوالے سے ہم بہترین تعلقات ہمسایوں کے ساتھ چاہتے ہیں. ہمسایوں کے ساتھ ہماری کوئی خصومت یا دشمنی نہیں ہے اور ہماری ہمسایوں کے ساتھ جنگ بھی نہیں ہے. ہمسایوں نے اپنے مٹی کا کچھ حصہ جو ہے وہ امریکہ کے سپرد کیا ہے. امریکہ نے وہاں بیسز بنائی ہیں اور امریکہ ان بیسز سے ہم پر حملہ کر رہا ہے. یہ جو اڈے ہیں کسی بھی طرح ان پر عرب ممالک کی حکمرانی نہیں ہے. ان اڈوں کا جو حکمرانی ہے اور جو اختیار ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور لہٰذا ہمارے جو ٹارگٹس یا ہدف ہیں وہ امریکنز اڈے اور بیسز ہیں جو ان خلیج فارس کے جو ممالک ہیں ان میں ہیں. اور ہمارے حکام نے کہا ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ جنگ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم دوبارہ ان اچھے تعلقات پر واپس لوٹ آئیں گے. ایران کی آئندہ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ تغییری نخواهد کرد سیاست خارجی ما. خارجہ پالیسی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. جنگ کے بعد ہمارے جو ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے. لیکن اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مغربی ایشیا سے امریکنز کو نکل جانا چاہیے اور حقیقت میں ایک نئی پالیسی جو ہے وہ خطے میں وضع ہونی چاہیے. اور ہم نے یہ جنگ ہم پر امپوز کی گئی ہے، تھوپی گئی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس بات ممکن ہے کہ امریکنز اور اسرائیلی اس جنگ کا آغاز کریں گے، لیکن اس جنگ کا اینڈ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اس کو اینڈ کریں گے. اور اس جنگ نے یہ بات ثابت کی کہ وہ مسلم ممالک میں اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں.